So beta, today's video is about uh, the questions related to Bohr's model and quantum mechanical model, structure of atom, class 11th. So first question is, comment on Bohr's model is against the Heisenberg uncertainty principle. ये लास्ट वीडियो में हमने किया था how Bohr's model, what Bohr's model told about the atomic structure and what the quantum mechanical model is about the atomic structure. So on the basis of this, we will do this question. Heisenberg uncertainty principle states that it is impossible to know the exact position and exact momentum of a substance, subatomic particle like an electron. Right? Heisenberg uncertainty principle ने क्या बताया था? We had already discussed in the last video that delta x into delta p is greater than or equal to h by 4 pi. Means we cannot find out the position. Delta x is the position of an electron and delta p is the momentum of an electron. Either you can say momentum or you can say velocity, because momentum is m delta v. Because we cannot find out the velocity and position of electron simultaneously, हम एक साथ दोनों चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सेज दैट इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव, एंड वेव जो है इट इज़ इन द मूविंग स्टेट. So it is not the, it's a kind of energy, it's not a showing a particle like character. So if it is a wave, then you cannot, if you uh, assume that it is here, at one point it is here, at the another point it is here, so its position and velocity of an electron cannot be find out simultaneously, because it behaves like a wave. So he gave this expression for the electron. But Bohr's model says no, we can find out the position velocity of electron at the same time. And for example, in the ground state of hydrogen, because Bohr model में हाइड्रोजन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, and so in the ground state of hydrogen the radius is exactly, बोर मॉडल में बोर ने रेडियस भी फाइंड आउट किया था. रेडियस ऑफ हाइड्रोजन कितना फाइंड आउट हुआ था? 0.529 ऑनस्ट्रॉम. एंड सो इफ वी नो द इलेक्ट्रॉन इज एग्जैक्टली ऑन अ रिंग, सपोज जो ऑर्बिट को कहा गया ऑन अ रिंग ऑफ रेडियस r moving at velocity v, the uncertainty in both position and momentum would be 0. And he find out that also found out that Vn in the nth orbit जो velocity होती है, that is equal to this much. So in Bohr's model he told that even the, if suppose electron move कर रहा है in the orbit, उसका radius fix है और orbit का, और उस ऑर्बिट में जो पार्टिकल की मूवमेंट है, वी कैन फाइंड आउट इट्स पोजीशन कि कौन से कितने डिस्टेंस पर इट इज़ मूविंग. एंड वेलोसिटी का भी उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि फॉर्मूले पर अगर हम ये z इज एटॉमिक नंबर एंड n इज number of orbit, then we can find out the velocity also, right? So Heisenberg uncertainty principle and Bohr's model were exactly opposite. Now this is Heisenberg principle is based on wave-like nature of electron, whereas Bohr model considered electron as a particle, right? तो बेटा ये हो गया क्वेश्चन. अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. The energy associated with the first orbit in the hydrogen atom is this. It is given. What is the energy associated with the fourth orbit? फर्स्ट ऑर्बिट में अगर एनर्जी इतनी है हाइड्रोजन एटम की, तो फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी? इसमें आपने क्या करना है, अगेन बोहर मॉडल, बोहर ने En फॉर्मूला भी गिवन था बोहर मॉडल में, दैट En इज इक्वल टू EH इंटू जेड स्क्र बाय एन स्क्र. तो EH हमें दिया हुआ है एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्र बाय एन स्क्र. फर्स्ट Z इज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंड अगर nth ऑर्बिटल 4 होगा तो कितनी होगी?
E4 इज इक्वल टू दिस मच, ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट अगर हमने निकालना है तो हमारा उसके पास फॉर्मूला है, हमारे पास उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करो एंड देन यू फाइंड आउट द वैल्यू आंसर। एंड देन रेडियस भी फाइंड आउट करना है, तो रेडियस भी nth ऑर्बिटल का कितना होगा उसका भी फॉर्मूला है, a नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। a नॉट अगेन रेडियस दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्बिट का, that was already found, and n is the third orbit में का रेडियस पूछा है, तो n is equal to 3, z हाइड्रोजन का 1 होता है, z is atomic number, और ये हमने फाइंड आउट कर लिया एंड ऑर्मस्ट्रॉन्ग को हमने 10⁻⁻10 में कन्वर्ट करके लिख दिया। ठीक है बेटा, तो दिस इज द, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 of He plus spectrum। अब देखो इसमें क्या है कि जो बार्मर ट्रांजिशन है n is equal to 4 to n is equal to 2, उसके सेम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होगा, जो इस स्पेक्ट्रम में n अगर 4 से 2 पे ट्रांजिशन हो रहा है तो उस ट्रांजिशन की जो वेवलेंथ है वो सेम वेवलेंथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कब होगी, किस ट्रांजिशन के टाइम पर होगी। तो अगेन डिफ़िकल्ट देखने में क्वेश्चन थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। इसमें हम राइटबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे फॉर हाइड्रोजन, न्यू इज इक्वल टू जो वेव नंबर है इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, दिस इज द फॉर्मूला, z इज एटॉमिक नंबर है, एंड n1 जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम विच ऑर्बिट टू विच ऑर्बिट, जो भी हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे क्या था, n1 is the first orbit and n2 is the second orbit, n1 is here 2 and n2 is 4। Palmer transition है from 4 to 2, तो this is the lower orbit and this is the higher orbit। और यहाँ से r He का जो एटॉमिक नंबर है, हमने हीलियम का एटॉमिक नंबर लेना है, He प्लस का एटॉमिक नंबर नहीं लेना, He का एटॉमिक नंबर क्या है 2। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि He प्लस है तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम विल रिमेन द सेम, सो इट इज 2 का स्क्वायर राइटबर्ग कांस्टेंट एंड 1 बाय लोअर ऑर्बिट 2 स्क्वायर, हायर ऑर्बिट 4 स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो, इट विल कम आउट टू बी 3/4 r। राइट, अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये हो गया कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई कि इसका जो 1 बाय लैम्डा है वेव नंबर है वो इतना आ रहा है। अब सेम वेव नंबर हमारे पास आना चाहिए हाइड्रोजन ट्रांजिशन में, वो इन द क्वेश्चन दिस इज टू वी हैव टू फाइंड आउट। अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, नाउ पुटिंग वैल्यूज फॉर हाइड्रोजन, तो 3/4 r इज इक्वल टू z, हम 1 ले लेंगे हाइड्रोजन का, अगेन दिस इज 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, r से r कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ पे अब हमें थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा कि ये कौन से नंबर्स आएंगे, यहाँ पे कौन से इंटीजर्स आएंगे। उसके लिए आप ये भी कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि हम कैसे फाइंड, ये सिंपल था तो आराम से मालूम चल गया कि 3/4 कैसे आएगा इफ n1 इज 1 एंड n2 इज 2, तो हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास ये सेम आंसर 3/4 आ जाता है। राइट, तो इसलिए देर इज फ्रॉम 2 to 1 अगर ट्रांजिशन होता है इन द लाइमन सीरीज, द इट विल बी द सेम एज इन He प्लस, जो भी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। क्लियर, समझ आ गया बेटा। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट वन वाले में इसमें हमने क्या किया था, एक बार दोबारा देखते हैं। हमने He प्लस को लेके सारा कैलकुलेट किया, जो आंसर आया हमने उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बराबर पुट करके n1 और n2 की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ताकि ये वैल्यू इट शुड कम आउट टू बी द सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट ट्रांजिशन ऑफ Li2 प्लस lithium 2 प्लस will have the same wavelength as that of the second line of Balmer series in the He plus spectrum। अगेन He plus का पूछा हुआ है, सेम z इज इक्वल टू 2, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, राइटबर्ग फॉर्मूला बोलते हैं इसको।
ठीक है। 1/λ इज इक्वल टू RH, यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए राइट बाय कांस्टेंट है, इसको लगाना नहीं है बिकॉज ये आगे जाके कैंसिल हो जाता है। z स्क्वायर है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि इन द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज, तो बेटा बामर सीरीज में सेकेंड लाइन का मतलब है n1 is 2, सेकेंड 2 पर फॉलिंग होती है लाइट की, एंड फ्रॉम सेकेंड लाइन मीन्स n2 is equal to 4, यानी कि 4 to 2, राइट। सो दिस इज 4 to 2 है, तो यहाँ पे इनिशियल 2 हो जाएगा, फाइनल 4 हो जाएगा, एंड दिस इज 4 16, और ये लोअर टू हायर ऑर्बिट लिखना है, एंड यहाँ से हमने वैल्यूज कैलकुलेट कर ली और हमारे पास आंसर आ जाता है, दिस इज 3/4 RH। अब फॉर Li2+ हमने निकालना है, Li का एटॉमिक नंबर क्या है 3, राइट। अब 1/λ लेना है, अगेन वही सारे फॉर्मूले लगाओ। अब इसमें n1 n2 हमने निकालना है। अब n1 n2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये हमने कैलकुलेट किया था, इट कितना आया देखो, 3/² करके इसमें हमने पुट किया, तो 3/4 इंटू नीचे 9 है एंड 1/12, यानी कि अब हमें n1 n2 इतना फाइंड आउट करना है कि हमारा आंसर 1/12 आ जाए। अब बेटा इसकी एक टेक्निक है, क्योंकि ऐसे आप एज्यूम कब तक करोगे ना, इसमें टाइम वेस्ट होगा। तो टेक्निक क्या है कि मल्टीप्लाई द He+ ट्रांजिशन लेवल्स बाय द रेशियो ऑफ Z वैल्यूज। जो हमें He+ ट्रांजिशन वैल्यूज दे रखी थी, He+ ट्रांजिशन क्या दिया हुआ था, n1 is equal to 2 एंड n2 is equal to 4, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है रेशियो ऑफ Z वैल्यूज से। Z वैल्यूज कौन सी है, लिथियम और He+। लिथियम का क्या है 3 एंड He+ का क्या है 2, यहाँ पे He+ होना चाहिए था, हाइड्रोजन प्लस लिखा है, इट शुड बी He+, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, आप ठीक कर लेना, दिस इज He+। सो लिथियम 3/2, तो इसको हमने 3/2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास n1 कितना आ गया 3 एंड n2 इज 6, उसको हम पुट करेंगे इसमें और हमारे पास वैल्यू आ गई 1/12 कैलकुलेट करके, हो गया ना। सो दिस इज लिथियम स्पेक्ट्रम में, यानी कि n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 3 में जब ट्रांजिशन होगा तो सेम वेवलेंथ हमारे पास वेवलेंथ की लाइंस आएंगी, जो कि हमारी सेकेंड लाइन ऑफ द बामर सीरीज की वेवलेंथ है। क्लियर बेटा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज पहले टॉपिक अच्छे से करो, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, तो आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर होते जाओगे साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप ऐसे क्वेश्चंस और करना, और मैं नेक्स्ट अब वीडियो में अगेन आई जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लेकर आऊँगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ओके।